In the last class, we studied section 25. We ended up with section 25, which talks about the freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion. अपने जिस भी रिलीजन को, पर्टिकुलर किसी भी रिलीजन में हम फेथ रखना चाहें, उसे मानना चाहें, उसे किस तरह से प्रैक्टिस करें और उसकी पब्लिसिटी करना चाहें, तो ये इस बात के लिए फ्रीडम है. किसी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन, किसी तरह का कोई बाउंडेशन स्टेट की तरफ से नहीं होगा. फाइन. इसके बाद में आगे हम बढ़ते हैं. सेक्शन 26 से हम अपनी आज की क्लास कंटिन्यू करेंगे. सॉरी, आर्टिकल 26 से. आर्टिकल 26 states that freedom to manage religious affairs subject to public order, morality and health. वही बात लिखी हुई है जो 25 में भी थी. So Article 26 states about subject to public order, morality and health. सारी फ्रीडम है, लेकिन कोई भी ऐसी फ्रीडम, कोई भी ऐसे एक्शंस जो पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करे, मोरालिटी को डिस्टर्ब करे और हेल्थ को डिस्टर्ब करे. एक बात याद रखिएगा, ये जो वर्ड मोरालिटी है, दिस इज मच मोर वाइडर स्कोप कंपेयर टू लॉ. पब्लिक ऑर्डर में तो आप फिर भी कह सकते हैं जो थिंग्स लीगल हैं वही होनी चाहिए, जो इलीगल है वो ना हो, जो लॉ में नहीं मेंशन है वो ना हो. लेकिन मोरालिटी की बात ये आती है कि कोई चीजें जो एज अ लॉ ऑफेंस नहीं डिक्लेयर किया गया है, बट फिर भी अगर उसे सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, then it should also be forbidden, it should also be prohibited. Subject to public order, morality and health, every religious denomination or any section shall have the right. What kind of rights? To establish and maintain institutions for religious and charitable purposes. Religious और charitable purposes से institutions को establish कर सकेंगे, स्थापना कर सकेंगे और maintain कर सकेंगे, उनका निर्वहन कर सकेंगे. Secondly, to manage its own affairs in matters of religion. रिलीजन के कंसर्न में स्टेट किसी तरह के कोई लॉज नहीं बनाएगा, वो अपने उनके इन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस में जिस भी तरह से उसका मैनेजमेंट देखना चाहे, उसके अफेयर्स को जैसा भी रन करना चाहे, द स्टेट शैल नॉट इंटरफेयर इन देयर अफेयर्स. टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी. To own and acquire movable and immovable property for the purpose of this religious institutions. And fourthly, to administer such property in accordance with law. Obviously, जो law में जो भी powers एक individual को दे रखे हैं in concern of property, वही सारे powers in religious institutions को भी मिल जाएंगे to administer those properties. But the important thing is, these rights will be allowed, these rights will be provided subject to public order, morality and health, not on the cost of these 3 points. Moving further, आप कह सकते हैं कि ये जो है ये क्या है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस. हमने पढ़ा है ना, जब भी कोई फंडामेंटल राइट मिलता है, फंडामेंटल राइट इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस. So these 3, public order, morality and health, shall be the reasonable restrictions for these 4 fundamental rights. Moving further, 27 states that freedom as to payment of taxes for propagation of any particular religion. एक particular religion से related अगर किसी टैक्स का पेमेंट करना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, इसके कंसर्न में फ्रीडम. No person shall be compelled to pay any tax. ऐसा नहीं कह सकते कि आपको हिंदू रिलीजन के लिए तो टैक्स पे करना ही होगा या चंदा देना ही होगा, आपको मुस्लिम रिलीजन के लिए तो चंदा देना ही होगा, टैक्स पे करना होगा. नो, no person shall be compelled to pay taxes, the proceeds of which are specially
the proceeds of which are specifically appropriated in payment of expenses for the promotion or maintenance of any particular religion or religious denomination. हम सब जानते हैं इंडिया में अगर हम सिटीजन हैं और even non-citizen, but if we are having some sort of economic activity in India, if we are associated with some sort of economic activities, if we are earning some money and all, हमें इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा. इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लेवी कर रखा है. अगर हमने कोई प्रोडक्ट परचेज किया तो हमें जीएसटी पे करना पड़ेगा. Irrespective the income tax, GST, these taxes have been levied by the government irrespective of any discrimination on the basis of sex, color, caste, religion, creed, or any of those, place of birth and all. But इसी के साथ में एक आ जा रहा है कि रिलीजियस बेसिस पे किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा. कोई भी ऐसा टैक्स नहीं लगाया जाएगा जिस टैक्स के प्रोसीड्स को किसी रिलीजन के लिए, पर्टिकुलर रिलीजन के लिए या रिलीजियस डिनोमिनेशन के लिए यूज किया जा सके. ऐसा कोई टैक्स इम्पोज नहीं होगा और किसी भी पर्सन को ऐसा कोई टैक्स पे करने के लिए नहीं कंपेल किया जाएगा, नहीं बोला जाएगा. क्लियरली वर्ड्स क्या लिखे हुए हैं, दैट नो पर्सन शैल, इट मींस स्टेट शैल नॉट, स्टेट ऐसा नहीं करेगा. नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्स द प्रोसीड्स ऑफ विच आर स्पेसिफिकली appropriated in payment of expenses for the promotion or maintenance of any particular religion. किसी रिलीजन के लिए यूज किया जाए ऐसे पैसे को, ऐसा कोई टैक्स इम्पोज नहीं किया जाएगा. मूविंग फर्दर, आर्टिकल 28. आर्टिकल 28 states about freedom as to attendance at religious instructions or religious worship in certain educational institutions. कुछ particular religion अपने religious propagation के पर्पज से कह सकते हैं आप, सोशल वेलफेयर के लिए भी कह सकते हैं. अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रन कर रहे हैं, उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में वो अपने रिलीजन से रिलेटेड जो भी बातें कहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई मिशनरी स्कूल है, मिशनरी स्कूल में वो बाइबल के बारे में कुछ पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, तो क्या उस मिशनरी स्कूल में जिस भी बच्चे ने एडमिशन लिया है उसे वो पढ़ना जरूरी होगा, कंपलसरी होगा? द आंसर इज क्लियर, नो. आपने उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लिया है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, साइंस, मैथमेटिक्स ये पढ़ाए जाएंगे, आप पढ़ें आराम से, कोई दिक्कत नहीं है. बट जो रिलीजन से रिलेटेड कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट वहां पे अगर पढ़ाया जाता है, उसके लिए क्लियरली मना किया जा सकता है, बिकॉज नो सिटीजन इज बाउंड टू टेक एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस. जिस रिलीजन के बारे में आप जानना चाहते हैं जान सकते हैं, नहीं जानना चाहते हैं कोई जबरदस्ती नहीं है. जिस रिलीजन को फॉलो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं. तो देखिए आर्टिकल 28 क्या स्टेट करता है, फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस. रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को अटेंड करने के लिए फ्रीडम होगी. और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिलीजियस वर्शिप को भी अटेंड करना चाहें या ना चाहें, दिस विल बी completely on the person's own will. क्या लिखा है? No religious instructions shall be provided in any educational institution wholly maintained out of state funds. अब यहाँ पे एक बात क्या लिखी है, जो भी ऐसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जिसे स्टेट फंड्स से मेंटेन किया जा रहा है, यानी कि गवर्नमेंट के फंड्स से मेंटेन किया जा रहा है, वहां पे किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन के इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जाएंगे. मे बी हिंदुइज्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी और बुद्धिस्ट और जैन, किसी भी रिलीजन से रिलेटेड, पर्टिकुलर रिलीजन से रिलेटेड कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जाएंगे अगर वो इंस्टीट्यूशन स्टेट फंड से मेंटेन हो रही है. फर्दर, नथिंग इन क्लॉज 1 shall apply to an educational institution which is administered by the state but has been
established under any endowment or trust which requires that religious instructions shall be imparted in such institution. अब सबसेक्शन 1 में क्या लिखा है कि स्टेट ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन मेंटेन नहीं करेगा, लेकिन सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर पर्टिकुलर इसी पर्पज से अगर कोई इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश किया है कि हम तो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस ही देना चाहते हैं, अपने ही पर्टिकुलर रिलीजन के लिए इंस्ट्रक्शंस देना चाहते हैं, लाइक आप लोगों ने एक नेम सुना होगा, काफी पॉपुलर नेम है DAV, दयानंद एंग्लो वैदिक, इसके स्कूल्स कॉलेजेस सब होते हैं। तो ये इस्टेब्लिश हुआ था पर्टिकुलरली दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की शिक्षा, वेदों की तरफ लौटें, इस तरह का उन्होंने एक स्लोगन देके और स्टार्ट एस्टेब्लिश किया था। तो ऐसी इंस्टीट्यूशंस में वेद के बारे में अगर पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, तो वो कर सकते हैं, बिकॉज उन्होंने उसी पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट से उसको एस्टेब्लिश किया है। बट अगेन अभी जैसे कि मैंने बताया कि ऐसे में क्या वहां पे जितने बच्चे एडमिशन लेंगे उनको जरूरी है फिर उसे अटेंड करना? No person attending any educational institution recognized by the state or receiving aid out of state, यानी कि ऐसा इंस्टीट्यूशन जो या तो स्टेट मेंटेन कर रहा है और या फिर स्टेट के फंड से एडेड है, स्टेट के फंड से एडेड भी अगर है, shall be required to take part in any religious instructions. तो ऐसे इंस्टीट्यूशन में किसी भी पर्सन को रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस में पार्टिसिपेट करना जरूरी नहीं है, that may be imparted in such institutions or to attend any religious worship that may be conducted in such institution. तो ऐसे religious instructions जो कि उस institution में दिए जाएं या फिर ऐसा रिलीजियस वर्शिप, ऐसी प्रार्थना वगैरह जो उस इंस्टीट्यूशन में की जाए, उसे अटेंड करने के लिए पर्सन बाउंड नहीं है, कोई भी पर्सन बाउंड नहीं है। और इन एनी प्रीमिसेस अटैच्ड देयर टू अनलेस सच पर्सन or if such person is a minor, his guardian has given his consent thereto. लेकिन एक उसमें फ्लेक्सिबिलिटी दे दी है कि अगर ये जो बच्चा है जिसने एडमिशन लिया है ये माइनर है, बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स है, और उसके पेरेंट्स ने इस बात की कंसेंट दे दी कि हाँ हमारा बच्चा इन इंस्ट्रक्शंस को अटेंड करेगा, वर्शिप को अटेंड करेगा, उन सब के लिए, अदरवाइज he is not compelled to do so. So this is provided by Article 28, which provides a freedom as to attendance or non-attendance at the religious instructions, as to join or not join religious worship in certain educational institutions. तो कौन सी educational institutions की बात हो रही है? ऐसी educational institutions जो कि out of state funds maintained है या तो, और या फिर स्टेट से एड ले रहे हैं, गवर्नमेंट एडेड अगर है, या फिर स्टेट से मदद, पूरे तरह से स्टेट के फंड्स पे ही बनाए गए हैं। अब ऐसा कोई इस्टेब्लिश किया जाता है जो पर्टिकुलरली अपने ही पैसे से इस्टेब्लिश किया है, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट से कोई एड नहीं ले रहा है, 100% प्राइवेटली रन हो रहा है, तो ऐसे में फिर आप कोई भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं, करते हैं, तो उसके लिए तो पर्सन बाउंड नहीं है कि आपको क्यों वहां पे एडमिशन लेना था। उन्होंने इस्टेब्लिश ही किया है अपने पैसे से, अपने ही धर्म के प्रचार के लिए, प्रोपोगेशन के लिए उन्होंने इस्टेब्लिश किया है। तो आप जाइए जो गवर्नमेंट फंडेड वाले इंस्टीट्यूशन से उसमें एडमिशन लीजिए, पर्टिकुलर किसी पर्सन को उसके घर में या उसके सेक्ट में वो क्या फॉलो कर रहे हैं उसके लिए तो नहीं रोका जा सकता। फर्दर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हो गया कंप्लीट हमारा, रिलीजन से रिलेटेड जो भी राइट्स हमें मिल रहे थे। अब आती है बात एक कल्चर और एजुकेशन से रिलेटेड क्या राइट्स हमारे पास में हैं। आर्टिकल 29 स्टेट्स अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज अगर अपने कल्चर को यू कैन से प्रिजर्व करने के लिए अगर कोई ऐसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, अपने कल्चर को सेफगार्ड करने के लिए, प्रमोट करने के लिए वो किसी तरह के कोई स्टेप्स लेना चाहते हैं, then it will be provided as a protection of the interests. Any section of the citizens, हमारे जो भी citizens हैं, नागरिक हैं, उनका अगर कोई ऐसा तबका जो कि
in the territory of India or any part thereof has distinct language, script और culture. ये 3 वर्ड्स आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखने हैं. इवन इंटरव्यूज में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसी भी ग्रुप को माइनॉरिटी ग्रुप डिक्लेयर करने के लिए क्या लीगलिटी है या फिर क्या ग्राउंड्स हैं. हमारे कंट्री में कुछ रिलीजन को माइनॉरिटी ग्रुप कहा जाता है, कुछ रिलीजन को माइनॉरिटी ग्रुप नहीं कहा जाता है, कुछ रिलीजन को माइनॉरिटी ग्रुप अभी रिसेंटली डिक्लेयर किया गया है. तो कौन से वो बेसिस है? अच्छा, बात क्या आ रही है? बात वर्ल्ड लेवल पे नहीं आ रही है, बात आ रही है इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. हो सकता है कि हम जिस पर्टिकुलर रिलीजन को, पर्टिकुलर सेक्ट ऑफ सिटीजन को माइनॉरिटी डिक्लेयर कर रहे हैं आउट ऑफ इंडिया, वो बहुत ज्यादा हों, पूरा कंट्री उनके हों. दैट इज नॉट कंसर्न इन दिस आर्टिकल. यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स, हमारे नागरिकों का कोई भी ऐसा एक वर्ग रिसाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया में रहते हुए एक डिस्टिंक्ट लैंग्वेज उनकी है, उनके अलग स्क्रिप्ट है, यानी कि जो उनके रिलीजन से रिलेटेड या उनके सेक्शन से रिलेटेड उनके कोई अलग ग्रंथ हैं, और कल्चर या फिर उनका एक पर्टिकुलर डिफरेंट कल्चर है जो दूसरों से मैच नहीं कर रहा है. सो ये 3 वर्ड्स आप अच्छी तरह से ध्यान रखें. किसे माइनॉरिटी कह सकते हैं? डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर. ऑफ इट्स ओन शैल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम. तो उनके पास राइट है कि वो अपनी उस लैंग्वेज को, अपनी उस स्क्रिप्ट को और अपने उस कल्चर को कंजर्व कर सकें, सेफ गार्ड कर सकें. डू नॉट मिस इंटरप्रिटेड विद द शेड्यूल्ड ट्राइब्स. उसके साथ इसको आप कोरिलेट ना करें. माइनॉरिटीज आर हैविंग डिफरेंट ग्राउंड्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर हैविंग डिफरेंट ग्राउंड्स. मूविंग फर्दर, सबसेक्शन 2 states that no citizen shall be denied. वर्ड सिटीजन लिखा है, इसका मतलब ये जो आर्टिकल है, ये जो फंडामेंटल राइट है, ये सभी को अलाउड नहीं है, ओनली सिटीजन्स को अलाउड है. जो कोई फॉरेनर यहाँ आता है उसके पास में ये फंडामेंटल राइट नहीं होगा. नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन into any educational institution maintained by the state or receiving aid out of state funds on the grounds only of religion, race, caste, language or any of them. तो ऐसे किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो कि स्टेट मेंटेन कर रहा है या फिर स्टेट के फंड्स से मेंटेन किया जा रहा है, वहां पे किसी भी पर्सन को एडमिशन देने से डिनाई नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एनी ऑफ द ग्राउंड्स, दैट इज रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम, सब और उनमें से कोई पे. तो ये था हमारा आर्टिकल नंबर 29, जो कि बात कर रहा है किससे? बात कर रहा है कल्चर के प्रिजर्वेशन से और एजुकेशनल राइट्स को सेफगार्ड करने से रिलेटेड. Moving further towards article number 30, which states about rights of minorities to establish, administer educational institutions. Minorities कौन होंगे? जिनकी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है या फिर डिस्टिंक्ट स्क्रिप्ट है या फिर डिस्टिंक्ट कल्चर है, वो माइनॉरिटीज होंगे. और इन माइनॉरिटीज के पास में राइट होगा कि वो अपने कल्चर, अपनी स्क्रिप्ट, अपने लैंग्वेज को प्रिजर्व करने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रन कर सकें, उनको मैनेज कर सकें. दैट इज स्टेटेड बाय आर्टिकल 30. राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर educational institutions. All minorities, whether based on religion or language, shall have the rights to establish and administer educational institutions of their choice. अब ये minority group religion के basis पे बनाया गया है या फिर language के basis पे, but इन्हें right है कि educational institutions को establish कर सकें और अपने
चॉइस से उसको एडमिनिस्टर कर सकें। इन मेकिंग एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर द कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन established and administered by a minority referred to in clause 1, the state shall ensure that the amount fixed by or determined under such law for the acquisition of such property is such as would not restrict or abrogate the right guaranteed under that clause. Clause 1 में क्या कहा गया है? क्लॉज 1 में ये राइट दिया गया है कि ये माइनॉरिटी ग्रुप्स एस्टेब्लिश भी कर सकते हैं और एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को अपने हिसाब से। और 1A क्या कहता है कि अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी को स्टेट एक्वायर कर रहा है तो उनको जो अमाउंट दिया जाना है, दैट अमाउंट शुड नॉट रेस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट द राइट गारंटीड अंडर दैट क्लॉज। जो क्लॉज 1 में उनको राइट मिला है उसे किसी तरह से कर्टेल ना करे, कट ना करे, उनको प्रॉपर उस राइट को तो उन्हें रेंडर होना ही चाहिए। द स्टेट शैल नॉट इन ग्रांटिंग एड टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो ऐसे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्हें माइनॉरिटी इंटरेस्ट के लिए जिन्हें मेंटेन किया जा रहा है, उन्हें जब उन्हें ग्रांट्स दी जाती हैं, फंड्स दिए जाते हैं, in that situation the state shall not make any discrimination against these educational institutions on the ground that it is under the management of the minority whether based on religion or language। तो इस बेसिस पे कि नहीं ये तो माइनॉरिटी के लिए मेंटेन्ड है, ये तो पर्टिकुलर गवर्नमेंट स्कूल तो है नहीं, स्टेट तो इसको मेंटेन कर नहीं रहा है, ये तो माइनॉरिटी ग्रुप की है, इसको फंड्स अभी नहीं देंगे, ये बाद में देंगे, कम देंगे, इस तरह की ये सारे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने चाहिए, वरना फिर उनका राइट कहाँ होगा? एक तरह से उनका तो राइट इन्फ्रिंज हो गया। सो दिस इज प्रोवाइडेड बाय दिस दैट देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन व्हाइल प्रोवाइडिंग द फंड्स एंड ग्रांट्स टू दीज इंस्टीट्यूशंस। आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 स्पेशल दोनों आर्टिकल्स हैं जो कि माइनॉरिटीज को के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए भी प्रोविजन देते हैं, और प्लस not only minorities but to the others also it provides a right and privilege so that every person residing within India, within the territory of India, can maintain and preserve its religion, maintain and preserve its scripts, maintain and preserve its language and culture। ये थी इसके बाद में आता है आपका आर्टिकल 31 जो कि आप सब जानते हैं रिपील कर दिया गया था कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी के थ्रू, ठीक है। एंड 44th अमेंडमेंट में इसको हटा गया था, जो राइट टू प्रॉपर्टी होता था उसे यहाँ से रिपील कर दिया गया था। और सेविंग्स ऑफ सर्टेन लॉज है आर्टिकल 31A, इसे हम अपनी कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो जो आर्टिकल्स आज हमने डिस्कस किए हैं, पर्टिकुलर आर्टिकल 26 टू आर्टिकल 30, इन्हें आप दोबारा से एक बार रीड करें। अगर कोई डाउट, कोई क्वेरी अराइज होता है तो रिकॉर्डेड लेक्चर देखें और ग्रुप में आप डिस्कस कर सकते हैं। ग्रुप में आप जितने भी मेंबर्स हैं आप सब ओपन डिस्कस कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि सारी चीजें जो इसमें लिखी हैं बस उतना ही समझें, आप ओपनली डिस्कस करें। जो भी आपका क्वेरी है एक पर्सन लिखता है और दूसरा उसको आंसर करता है, सो दैट इज अ गुड हैबिट।